Good evening, everyone. Welcome to Ansargari. Today we will do newspaper of January 27th. Coming to the first article, it is talking about the relationship between the India and Egypt. There are around 3 to 4 articles. We will just discuss it later. Coming to the second article regarding the Jharkhand's first survey of migrants. It is a 2 month exercise involving 24 districts, 11,000 households. So the important point in this article is that with the help of survey, the Jharkhand government will be able to integrate the findings, the important data that will be used for social security benefits available to their family, and also the identifying the health hazard they have faced. That is, several areas challenges such as social welfare, food security, livelihood, health management, all these areas will be tackled with the help of this survey. This survey should be a model for uh, giving out benefits in a targeted manner in other states also. Coming to the next article, it is talking about the intranasal vaccine. It has been developed by Bharat Biotech. The name of it is Incovac. It is a first intranasal vaccine. The delivery mechanism in the nose can generate immunity in the mucosal membrane, that is in the nose and mouth. उसका दाम रहेगा 325, 800 रुपया for the private players. It will be used through the CoWIN platform. Then तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द भारत बायोटेक, और नाम है उसका इनकोवैक बस. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 6. It is talking about the misinformation, which is the biggest threat to democracy, electoral integrity, and तो कैसे है, तो वो लिखा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डीप फेक. Use of artificial intelligence. With the use of artificial intelligence, the video and the sound recording can be replaced by another person's voice and face. Or this can be used to manipulate the political messaging and also to spread hate among the voter, among the society. तो इससे मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो इसको टैकल करने के लिए कुछ टूल्स होना चाहिए. तो इसमें टूल्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सोच सकते हैं इसके ऊपर क्या क्या टूल्स होना चाहिए. फर्स्ट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास वॉर रूम होना चाहिए. दे कैन कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द इलेक्शन. सेकेंड, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. थर्ड, अवेयरनेस मैकेनिज्म थ्रू आउट द न्यूज़पेपर, वीडियो मैसेजिंग, TV ad, etc. regarding the fake news and disinformation. फैक्ट पोर्टल होना चाहिए, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट होना चाहिए दैट कैन जस्ट रिएक्ट टू द फेक न्यूज़ दैट इज़ इन द सोसाइटी. और साथ ही साथ स्पीड ट्रायल बाय द कोर्ट होना चाहिए. फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए लॉ भी होना चाहिए. तो ये ओवरऑल जो एरियाज है इसको यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 7 रिगार्डिंग द फर्स्ट सोलर मिशन बाय इंडिया, द आदित्य L1 मिशन, that is to observe the sun from the vantage point of 1.5 kilometers from the earth. It is developed by ISRO. तो पहला पॉइंट है आदित्य L1 मिशन किसका है, इसरो का है, और वेंटेज पॉइंट से मेज़र किया जाएगा. उसमें पेलोड होगा
इट इज़ कॉल्ड एज विजिबल एमिशन लाइट क्रोनोग्राफ। तो ये पूछ सकता है, इट इज़ टू स्टडी द सोलर विंड, सन्स एटमोसफियर, कोरोना इजेक्शन एंड। तो वो सैटेलाइट कहाँ पे होगा? सैटेलाइट विल ट्रैवल टू द L1 लैग्रैंज पॉइंट बिटवीन द सन अर्थ, जहाँ पर उसका जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू द बोथ द ऑब्जेक्ट। इसी कारण ये मूव कर सकेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं सन को और स्टडी कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन रिगार्डिंग UPSC। The next article is talking about the Delhi and Egypt collaboration on cross-border terrorism and tackling the radicalization in the society. We will do it in the next article. Then next article is also talking about the India and Egypt relationship. तो brief introduction है, that is the Cairo, that is capital of Egypt. It had remained close ally of US since 1970s, and after the first Yom Kippur War जो हुआ था 1973 में, after that it was the first Arab country to recognize Israel, and 5 decades later, that is in 2000s, the geopolitical landscape of the West Asia transformed with 9/11, Arab Spring in 2011, rise of ISIS in 2014, 15, 16, then Abrahamic Accord in 2020. तो उससे एक रिलेशनशिप चेंज हुआ इन द अरेबिक, नॉर्थ अफ्रीकन एंड अरेबिक एरियाज। साथ ही साथ इंडिया का क्वाड फॉर्मेशन हुआ इन द मिडिल ईस्ट विथ रिगार्डिंग टू UAE, इजराइल एंड US। तो इसके कारण जो एक बुलवक था अगेंस्ट टेररिज्म इन दैट रीजन वो इजिप्ट था। तो इंडिया और इजिप्ट का रिलेशनशिप ऐसा है कि इंडिया एंड इजिप्ट आर ट्राइंग टू रिमेन न्यूट्रल इन रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। दे आर बोथ टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल साउथ एंड ऑल्सो द टू कीप द फूड प्राइसेस स्टेबल। उसके लिए इंडिया ने एक्सपोर्ट भी किया है वीट इजिप्ट, दैट इज अराउंड 1.8 लाख टन। both are talking about defense sector, both talking about climate change, co-manufacturing। तो ये सब एरियाज है जो आगे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 9 रिगार्डिंग द इन्विटेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो अभी जो UGC का बात हो रहा था कि बाहर से यूनिवर्सिटी को बुलाएंगे इंडिया में अपना ब्रांच खोलने के लिए, उस पर ये क्रिटिक आर्टिकल का ये बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट इन्होंने लिखा है। पहला, जैसे उनका एक अपना ब्रांड वैल्यू है आईवी लीग का, अगर वो इंडिया में इस्टेब्लिश करें कैंपस को तो उनका ब्रांड वैल्यू हो सकता है घटे, क्योंकि वो क्वालिटी के टीचर्स प्रोफेसर्स हो सकता है नहीं मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिले, रिसर्च फैसिलिटी नहीं मिले। उसके कारण जो बच्चे को एक मिलना चाहिए एजुकेशन वो नहीं मिलेगा, जिसके कारण फीस ज़्यादा होगा, साथ ही साथ एजुकेशन टॉप मार्क बेंच मार्क नहीं रहेगा, तो ओवरऑल लॉस होगा स्टूडेंट को ही होगा। दूसरा पॉइंट है कि the student and parents will want their children to study in US and foreign university. Why? Because of जो पैसा खर्च होगा 80-90 लाख या करोड़ में होगा, that can be earned with the help of job in the international labor market, जो इंडिया में नहीं पॉसिबल है। अगर फीस कम नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा घाटा होगा। तो इसका सोल्यूशन एक है जिन्होंने बोला है कि रैदर दैन इन्वाइटिंग द फॉरेन यूनिवर्सिटी इनटू द कैंपस ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव फॉर जॉइंट डिग्री प्रोग्राम इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन। कुछ डिसिप्लिन में प्रोफेसर बाहर से बुला के पढ़ा सकते हैं विथ इंडियन प्रोफेसर, और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूशन जो भी IIT या IIM है और साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है वो प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो पढ़े हैं वो रिसर्च फैसिलिटी के साथ जॉइंट MOU कर सकते हैं, जॉइंट कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ टीचर प्रोफेसर का एक मीटिंग करा सकते हैं, और साथ ही साथ जॉइंट टीचिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर बोथ द स्टूडेंट एंड ऑल्सो द ब्रांड वैल्यू ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशन। देन
Next article is talking about the collegium and its problem. तो रिगार्डिंग द क्रिटिक ऑफ द कोलेजियम सिस्टम ये बोलना चाह रहे हैं ये आर्टिकल में, क्या कोलेजियम प्रमोट करता है डाइवर्सिटी इंक्लूजन को, क्या कोलेजियम प्रमोट करता है फास्टर अपॉइंटमेंट को, क्या कोलेजियम is leading to the decrease of pendency of the cases and reducing the time for disposal of cases. Does collegium is favoring the बाप बेटा भतीजा system in the judiciary? Does collegium is promoting the justice that is making affordable and accessible to common man? अगर ये है तो कोलेजियम सिस्टम सही है, अगर ये नहीं है तो जुडिशरी को इस पर बात विचार करना चाहिए और एक नया सिस्टम लागू करना चाहिए जिसके कारण इट वुड बी मोर इफेक्टिव एंड मोर इक्विटेबल फॉर ऑल द स्टेक होल्डर इन द जस्टिस सिस्टम. द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 11 रिगार्डिंग द शॉर्ट सेलिंग. तो हिडनबर्ग रिसर्च था अडानी के ऊपर, अभी हाल फिलहाल जो आया है कि हिडनबर्ग रिसर्च है, दे हैव डिस्क्लोज दैट अडानी ग्रुप हैड मैनिपुलेटेड द स्टॉक. तो वो अलग मैटर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट है इसमें शॉर्ट सेलिंग है क्या. जो लॉन्ग सेलिंग होता है, लॉन्ग पोजीशन, वो होता है कि सस्ते में खरीदो और ज़्यादा दाम में बेचो, सिंपल सा बात है. शॉर्ट सेलिंग होता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन विच कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि जो प्राइस ऑफ जो ट्रेड है वो गिरेगा आने वाले वक्त में, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको बाई लो सेल हाई अप्रोच से है. इसका मतलब कि हम लोग पहले सेल कर देते हैं ज़्यादा दाम में. अगर 5,000 रुपया अगर कोई स्टॉक का है तो इसको सेल कर दिए विद द व्यू, विद द एक्सपेक्टेशन कि आने वाले वक्त में 5 से 4,000 होगा, 3,000 होगा, 2,000 होगा. तो जब होगा तब हम लोग बाई करेंगे, उससे प्रॉफिट आप उसको ले सकते हैं. लेकिन अगर 5 से 4,000 नहीं होकर 5 से 6,000 हो गया तो आपको खरीदना पड़ेगा एट अ लॉस. ये है शॉर्ट सेलिंग. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द M1 Abraham. इट इज़ अ टैंक, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक ऑफ US. तो एक टैंक है US का, बस याद रखना चाहिए. और लियोपोर्ड टैंक है, ये जर्मनी का है, बस. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द इंडिया इजिप्ट अपॉर्चुनिटी. तो ओल्ड हिस्ट्री है कि इंडिया इजिप्ट का रिलेशनशिप इज स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पेयर ऑफ अशोका, देन महात्मा गांधी, और साथ ही साथ ड्यूरिंग द 1947 जवाहरलाल नेहरू वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ अब्दुल नसर. इंडिया साइंड फ्रेंडशिप ट्रीटी विद 1955 with Egypt. Yugoslavia president, Indonesia president Sukarno, then Ghana's president, both established NAM, that is non-aligned movement. तो जो इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट था, इजिप्ट वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट. इट हैड टेकन पार्ट इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट. उसके बाद इजिप्ट में कू हुआ और फिर वापस से जब पॉपुलर वोट से जीते, उनका नाम है प्रेसिडेंट अब्देल फतह एल सीसी. तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप में. क्यों इम्पोर्टेंट है इजिप्ट? क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, वहाँ से ट्रेड रुक जाता है, सुइस कैनाल. साथ ही साथ चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है. तीसरा पॉइंट $15 बिलियन का है, दैट इज़ मोर देन $7.2 बिलियन विथ इंडिया. तो इंडिया चाहेगा कि वहाँ इन्वेस्ट करे. साथ ही साथ वहाँ बात चल रहा है कि इंडियन कंपनीज़ को एक वहाँ प्लॉट मिले, वहाँ बिजनेस इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिले इजिप्ट में. फिफ्थ पॉइंट, इंडिया एंड इजिप्ट बोथ हैव डिफेंस, बोथ आर डिफेंस कंज्यूमर. इजिप्ट हैज़ ऑल्सो बॉट राफेल. तो मेंटेनेंस, रिपेयरमेंट, इस सब का काम के लिए इंडिया एंड इजिप्ट कोलैबोरेट कर सकते हैं. थर्ड इज न्यू दिल्ली, दैट इज इंडिया विल be able to supply India-made defense equipment such as LCA Tejas, Akash, DRDO, smart anti-airfield weapon radars to Egypt. Then India and Egypt have very much experience regarding radicalization and terrorism in Kashmir and also in
dealing with ISIS. तो on terrorism, Egypt is a very much important player against terrorism. तो इंडिया इजिप्ट वहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट में काम कर सकते हैं. साथ ही साथ जो अल अज़हर जो यूनिवर्सिटी है इजिप्ट में, इट इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सीट फॉर लर्निंग फॉर सुन्नी इस्लाम. तो इजिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द अरब मुस्लिम वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम UAE एंड सऊदी अरेबिया. तो ये इम्पॉर्टेंट. तो छठा सातवां पॉइंट ये है कि इजिप्ट एंड इंडिया कैन टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, ट्रेड एंड पार्टनरशिप, देन क्लाइमेट चेंज एंड रिगार्डिंग द न्यूट्रल स्टैंड ऑन Russia Ukraine war. India and Egypt can collaborate on rupee trade with Egypt. Then Egypt is purchasing 80% of its grain coming from Russia and Ukraine. After that, India has given 61,000 metric ton to Egypt. Further, as Egypt needs more investment from India because it has approached IMF for bailout, the Indian companies can also invest more in Egypt. Right now, it is investing around $3.15 billion. So overall, in the field of terrorism, in the field of climate change, in the field of energy security, defense, then people-to-people contact, trade and investment, strategic location, India and Egypt can collaborate in future. Then next article is talking about the gold price that has risen approximately 2 times from in last 10 years. तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया हैव बॉट 611 टन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, ओनली सेकेंड टू चाइना. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इन द वर्ल्ड. तो बस ये जानना है. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 12 रिगार्डिंग अ T+1 सेटलमेंट. अभी जो सेटलमेंट होता है वो T+2 है. T+2 आया था 2003 में, T+3 पहले था. इसका मीनिंग होता है कि वेन एवर देयर इज़ अ ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट, आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें जो सेटलमेंट होता है कि आप खरीद बेचते हैं, तो इट शुड बी विद इन 48 आवर्स. ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए बाय एंड सेल का, जो भी कस्टमर का जो डीमैट अकाउंट से है और साथ ही बैंकिंग, पूरा ट्रांजेक्शन जो है बाई सेल का वो कंप्लीट होना चाहिए 2 दिन के अंदर T+2 में. अभी इसको T+1 बनाया जाएगा. उससे क्या होगा कि जो लिक्विडिटी बहुत राइज करेगा, इंटरेस्ट जो कंज्यूमर का है रिगार्डिंग द मार्केट वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं, FPI बढ़ सकते हैं इंडिया में. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द मेटावर्स. इट इज़ सेइंग दैट मेटावर्स का जो पॉपुलरिटी है वो बढ़ेगा आने वाले 8-10 साल में. तो मेटावर्स है क्या, बस ये जानना है. मेटावर्स इज रिलेटेड टू द वर्चुअल वर्ल्ड दैट कैन बी एक्सपीरियंस विद द यूज ऑफ इक्विपमेंट सच एज VR विद डिजिटल फिजिकल फ्यूजन. तो आप VR पहनेंगे तो आपके जो एल्गोरिदम यूज़ होगा, सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, उससे आप गेम खेल सकते हो, ऑनलाइन प्लॉट खरीद सकते हैं, डेटिंग जा सकते हैं, फिर आप कुछ रेसिंग गेम खेल सकते हैं, शूटिंग गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इन द मेटावर्स. That's all for today. Thank you.